Good morning, class 6 students. I was explaining in the last class regarding this one, pure substances. Definition I was explaining. Little bit of a part I explained, the left out part I will explain today. Before explaining the left out part, let us discuss the question which I gave you as homework in my previous class. All of you open page number 34. Now see here, these two questions I gave. Write the chemical name for the following formula of compounds. ये सब फार्मूला दिया हुआ है कंपाउंडों का. इन कंपाउंडों का जो फार्मूला दिया हुआ है इसको अंग्रेजी नाम लिखो. So this answer is given on page number all of you open page number 33, sorry, page number 31. So this was given HCl, formula given of the compound. What you will write the name? You will write the name hydrochloric acid. Another was given NaOH, formula of one compound. What will be the name of this compound? You write this sodium hydroxide. Another was given formula CaO. Then what will be the name of this CaO formula compound? The name will be calcium oxide. Another was given Na2CO3, formula of one particular compound, Na2CO3 given. Then what will be the name of this formula for a particular compound? Name of that compound will be sodium carbonate. Another was given NaCl, formula given of a particular compound. Then what will be the name of that particular compound? Name of that particular compound will be sodium chloride. You have to write this one, sodium chloride. Another was given CuSO4, formula of one particular compound. Then what will be the name? Name will be copper sulfate. Okay. Another question I gave. Ninth question, write the chemical formula of the following compounds. This question is just opposite of the question number 8. यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ कंपाउंडों का, इस नाम को पढ़ के you have to write in the form of formula like this. This answer is also given on page number 31. All of you open page number 31. Here you see nitric acid written. You have to write the formula of this name of the compound given. Formula will be you will write HNO3. Then another was given calcium oxide, name of the compound written. You have to write in the formula form. How will you write then? CaO. Ca calcium, O oxygen, calcium oxide. Another was given sodium bicarbonate, name of a compound was given. You have to write this name in the formula form. Formula form will be this one, sodium NaHCO3. This one you have to write. Na is sodium, SCO3 is bicarbonate. The sodium bicarbonate. Another was given, this name was written silver nitrate. You have to write the formula, then formula will be AgNO3. Ag is silver, NO3 nitrate, silver nitrate. This one you have to write. So I think these are the questions which I gave as homework in a previous class, and I hope you will be able to answer the questions correctly. Now let us come to the definition which I was explaining in the previous class regarding pure substance. So up to this I explained which was related with the up to this much I explained regarding pure substance they defined. This was related with the element which is also one pure substance. Now I will start from here. If a substance is made up of two or more kinds of particles, अगर कोई चीज बना होता है दो से अधिक kinds, अलग अलग तरह के पार्टिकल का जो combined together, जो एक साथ मिला हुआ है अलग अलग पार्टिकल, then तब क्या होता है? The proportion of this combining particle, कितनी मात्रा में या कितनी वजन में ये सारे अलग अलग पार्टिकल मिलके रह रहा है, वजन के हिसाब से कितनी वजन है उन पार्टिकल को, अलग अलग पार्टिकल जो मिलकर रहता है, मस्ट रिमेन कांस्टेंट, वे कभी बदलेगा नहीं. ओके, उन पार्टिकल का वजन कभी बदलता नहीं है. तो एक्चुअली दिस सेंटेंस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड, एक्चुअली दिस सेंटेंस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड, इट इज एक्चुअली फॉर द compound which is also a pure substance. Now let us recall little bit about compound which I explained in the previous class. Compound क्या होता है? It is a pure substance which contains many same type of very small particles known as molecule particles. Okay, and each molecule particles, and you know that molecule are made by combination of atom particle. So each molecule particle of the compound substance will have two or more than two different type of atom particles. This one written here, two or more kinds of particles combined together. So this is related with the compound definition of compound which I just now explained. So मैं हिंदी में क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? कंपाउंड वो चीज होता है जिसके अंदर बहुत सारे एक ही तरह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल वाला टुकड़ा.
उस कंपाउंड का, और उस हर मॉलिक्यूल वाला टुकड़ा उस कंपाउंड के अंदर जो होता है, मॉलिक्यूल पता है एटम से, एटम मिलने के बाद कुछ एटम मिलने का मॉलिक्यूल बनता है, तो वे कंपाउंड के हर मॉलिक्यूल के टुकड़े के अंदर दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के एटम वाले टुकड़े मिलके रहते हैं. सो एंड weight of the particles, weight of the atom particles which are mixing to form a molecule, those weight of those particles will always remain same, they will not change. मतलब जो टुकड़ा, अलग अलग टुकड़ा मिलके जो मॉलिक्यूल वाला टुकड़ा कंपाउंड का बन रहा है, वे उसकी वजन क्या रहता है, टुकड़े की वजन ऑलवेज सेम रहता है. Let us take an example. For if you filled up a glass with water, that water is a compound, and you know that water is a compound, then that water compound will contain many same type of very small particles known as water molecule particles. Because why water molecule particles? Because they are the particle of the water compound only, and each water molecule particle will contain two different type of atom particle. One is hydrogen atom particle, another is oxygen atom particle. And you will see that in each water molecule particle, two atom particle of hydrogen is mixing with the one atom particle of oxygen. And you will see that weight of one oxygen atom particle and the weight of two hydrogen atom particle in each molecule will say is constant, is never changing, will be same. मतलब जब पानी के अंदर बहुत सारे एक ही तरह के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उन टुकड़ों को बोलते हैं पानी का मॉलिक्यूल. ओके, और मॉलिक्यूल बनता है एटम मिलने के बाद. तो हर पानी की मॉलिक्यूल में दो अलग अलग तरह के एटम मिला हुआ है, या टुकड़े मिले हुए, जिसको बोलते हैं एटम वाले टुकड़े मिले हुए. वे कौन कौन से एटम वाला टुकड़ा मिला हुआ है? हर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम के टुकड़े और एक ऑक्सीजन एटम के टुकड़ा, जिसको एटम बोलते हुए मिला हुआ है. और वजन हर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन का वजन होगा, हाइड्रोजन का वजन हो जाता है तुम्हारा 2 ग्राम हर मॉलिक्यूल के अंदर, और ऑक्सीजन का वजन हो जाता है 16 ग्राम. ये हर मॉलिक्यूल में इट विल रिमेन सेम. ओके, बदलेगा नहीं. नाउ इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द अबव फैक्ट, यही कारण है जो ऊपर वाले दिए हुए सच्चाई, ये सच बात है कंपाउंड के बारे, एलिमेंट कंपाउंड के बारे और कंपाउंड वाले सब्सटेंस के बारे, that all elements are called pure substance. इसी के कारण एलिमेंट, हर एलिमेंट को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. सिमिलरली उसी तरह ऑल कंपाउंड को भी हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. however sometimes the substances which we commonly call pure, कभी कभी हम लोग चीज़ों को जिसे हम लोग साधारणतः बोलते हैं स्वच्छ, are not pure, वे स्वच्छ नहीं होता है फ्रॉम ए केमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट के वाले लोगों के विचार से. केमिस्ट हु आर नोन एज केमिस्ट, द पर्सन्स हु स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री. ओके, फॉलोइंग एग्जांपल्स विल मेक द पॉइंट क्लियर. नीचे दिए गए उदाहरण विल मेक द पॉइंट, ये विषय को ये साफ करेगा. नाउ क्लियर टैप वाटर, साफ नल का पानी, इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस. दैट मीन्स tap water is not a pure substance, but it is not an element or also not a compound. Because कारण, in addition to water, नल का पानी में water compound है, it contains small amount of dissolved salt, और contain रहता है कुछ कम मात्रा में dissolved salt, नमक घुल मिल करके है उस पानी के अंदर. एंड एयर इन इट, और हवा भी जिसके अंदर बहुत सारे गैस है, वे भी पानी के अंदर होता है. इट इज दिस सॉल्ट, यही नमक है जो प्रोवाइड देता है टेस्ट टू वाटर, पानी का स्वाद. दैट मीन्स क्लीन वाटर, क्लियर टैप वाटर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस. दैट मीन्स इट इज नॉट एन एलिमेंट और ऑल्सो नॉट एन कंपाउंड. इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इसमें मिक्स किया गया है वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर compound, molecules of salt compound and molecules of the gaseous compound. Next, milk is not a pure substance. दूध भी एक pure substance नहीं है. मतलब दूध is not a compound, not an element also. As it is made, क्योंकि यह बना है किससे? फैट्स, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट, नमक, विटामिन
and water present in different proportion. ये अलग अलग चीजें एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में, अलग अलग मात्रा में दूध के अंदर है. किसी दूध में चर्बी ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट कम है, उसकी मात्रा कम है. नमक ज्यादा है तो प्रोटीन की मात्रा कम है. इस तरह से ये सारे चीज मिला हुआ है अलग अलग मात्रा में दूध के अंदर. सो मिल्क इज एक्चुअली is a mixture. Yeah, it is made by mixing, मिला के what? Many molecules of fat compound, many molecules of carbohydrate compound, many molecules of protein compound, many molecules of salt compound, many molecules of vitamin compound, and many molecules of water compound. So many compounds, different type of compounds are mixed to make the milk. Next, honey. Honey is also not a pure substance. That means honey is not an element, not a compound also. Why? As it contains, it मतलब हनी में, मधु में रहता है a number of molecules, बहुत सारे molecules मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े of other substance, दूसरे चीजों का, in addition to sugar, सुगर के टुकड़े के लेकर भी. So honey is a mixture or it is made by mixing, मिला के क्या क्या चीज, बहुत सारे टुकड़े अलग अलग चीजों के और बहुत सारे टुकड़े सुगर वाले कंपाउंड के और बहुत सारे टुकड़े अलग अलग चीजों के कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड वाले चीजों के मिला के हनी इज मेड. नेक्स्ट, फ्रूट जूस, फलों का रस इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस. दैट मीन्स फ्रूट जूस इज नॉट एन एलिमेंट ऑल्सो, नॉट ए कंपाउंड ऑल्सो. एज इट कंटेन्स, इसमें होता है सुगर, चीनी वाली सब्सटेंस चीज, मिनरल सॉल्ट वाली चीज, एंड अ नंबर ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली चीज. दैट मीन्स फ्रूट जूस इज अ मिक्सचर ऑफ और इट इज मेड बाय मिक्सिंग sugar compound, many molecules of sugar compound, many molecules of mineral salt compound, and many molecules of organic compound. Okay, medicine are generally made. Medicine which we take is also not a pure substance. It is not an element also. It is not a compound also. It is made by mixing, मिला के different substances in different proportion. अलग अलग चीजों को अलग अलग मात्राओं में मिला के हम लोग अलग अलग दवाई बनाते हैं. That means medicine is a mixture or it is made by mixing many molecules, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े of different substance, अलग अलग चीजों का in different proportion, अलग अलग मात्रा में. Next, mixture. All the substances mentioned above, और ये सारे चीज जो मेंशन किया गया थोड़ी देर पहले मैंने जो समझाया, कौन कौन सी चीजों के बारे, टैप वाटर, दूध, मधु, फ्रूट जूस और मेडिसिन के बारे में जो बताया था, ये सारे नॉट प्योर सब्सटेंसेस हैं. इनको हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे. मतलब ये ना एलिमेंट है ना कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड और एलिमेंट ही प्योर सब्सटेंस होता है. बिकॉज कारण दे कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस. मतलब ये सारे जिसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं, ये बना हुआ है, इसमें इसके अंदर क्या है, 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस मिला हुआ है. मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड वाले चीज मिला हुआ है. सच सब्सटेंसेस, ये सारे चीज आर कॉल्ड मिक्सचर. इन सब चीजों को मिक्सचर बोलते हैं. मतलब क्लियर टैप वाटर, मिल्क, हनी, फ्रूट जूस, मेडिसिन आर नॉट प्योर सब्सटेंस, दे आर नोन एज मिक्सचर. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, फैक्ट मतलब सच्चाई ये है, ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस, सारे चीजों विच ऑकर इन नेचर, जो पाया जाता है या होता है नेचर, प्रकृति में, आर नॉट प्योर सब्सटेंस. ये सारे प्योर सब्सटेंस नहीं है, स्वच्छ वाला चीज नहीं है, बट आर मिक्सचर. लेकिन ये सब चीजें मिक्सचर की तरह है. वी कैन प्रिपेयर, हम लोग बना सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस, स्वच्छ वाले चीज, फ्रॉम दिस नेचुरली ऑकरिंग मिक्सचर. ये प्रकृति में पाया गया मिक्सचर के अंदर से हम लोग उसको लेके बना सकते हैं अलग अलग स्वच्छ वाला चीज, बाय वेरियस फिजिकल मेथड. कई तरीके से, शारीरिक या फिजिकल कोई यंत्र लेके या शारीरिक द्वारा बेहतर तरीके से हम लोग स्वच्छ चीजों को मिक्सचर के अंदर से निकाल सकते हैं या बना सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर. नाउ क्वेश्चन कैन कम, व्हाट इज मिक्सचर? देन व्हाट यू विल राइट? इफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, if 2 or more substances, elements or compounds or both are mixed together in any proportion. मतलब अगर मिक्सचर किसको बोलेंगे? अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक चीजें, वो चीजें क्या होगा, एलिमेंट या कंपाउंड या दोनों, एलिमेंट कंपाउंड दोनों, और मिक्स टुगेदर, मिलाया जाता है एक साथ, इन एनी प्रोपोर्शन.
कोई भी मात्रा में, मतलब मिक्सचर बनाने के लिए हम दो या दो से अधिक एलिमेंट मिला के, अलग अलग एलिमेंट मिला के मिक्सचर बना सकते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड मिला के मिक्सचर बना सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड मिला के मिक्सचर बना सकते हैं, या बहुत सारे कंपाउंड मिला के हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं। और जब मिक्सचर बनेगा, जब एलिमेंट और कंपाउंड बन के, मान लो फॉर एग्जांपल वन एलिमेंट वन कंपाउंड आई एम मिक्सिंग, देन व्हाट आई विल गेट a new substance, and that new substance is known as mixture. In that mixture the quantity or the weight, proportion मतलब कितनी मात्रा में, the quantity or the weight of the element and compound which I am mixing together, it can be any proportion, it will not be same, it can be different, it can be same, that is उसका मतलब है proportion. Proportion मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड को जो मिला के मिक्सचर बनाएंगे, एलिमेंट और कंपाउंड की मात्रा, उसकी वजन, उसकी साइज सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है, with such that they do not undergo any chemical change. मिलने के बाद जो चीज मिल गई, एलिमेंट कंपाउंड मिलके जो मिक्सचर बना, उस एलिमेंट और कंपाउंड जो मिक्सचर में है उसकी कोई रासायनिक बदलाव नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज बिफोर मिक्सिंग, जैसा था मिलाने से पहले जिस तरह था एलिमेंट कंपाउंड, मिलाने के बाद एलिमेंट कंपाउंड को मिक्सचर जो बन गया, वो एलिमेंट कंपाउंड विल रिमेन एज इट इज, एज इट वाज बिफोर, बट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, लेकिन वे अपना गुण, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर जो मिक्सचर बना, उस मिक्सचर के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड को जो गुण है वो रह जाता है। देन द रिजल्टिंग मास इज कॉल्ड मिक्सचर। और ये दोनों मिलके, एलिमेंट कंपाउंड या बहुत सारे एलिमेंट या बहुत सारे कंपाउंड मिलके जो मिक्सचर बनाया, और इसका रिजल्टिंग मास इज कॉल्ड मिक्सचर। ये पूरा जो मिक्स होके जो बन जाएगा उसको बोलते हैं मिक्सचर।